Hello friends, welcome to EduPar Academy. I'm Samir Tripathi, and today in this video we'll be talking about a short or a crisp preparation strategy that is required for political science CUET domain. What strategy you should take up, क्या किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन सी बुक्स पे फोकस करना है, नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, रिवीजन किस तरीके से करना है, all these things we'll discuss in this video. So first and foremost thing is that we should understand the pattern of the exam. We had already made a video discussing the paper. The last video was about discussing the paper of CUET domain political science. We'll understand the exam in short. So total number of questions asked in political science exam is 50 questions. Out of which you have to attempt 40 questions. Total marks is 200. Question types are MCQs, objective types. Exam duration is 45 minutes. Mode of the exam is computer based test. Negative marking is there. Marks given for each correct answer is +5. Marks given for every incorrect answer is -1. Marks given for unanswered question is 0. So it is very important that your choice of questions, your selection of questions out of 50 should be very crisp, very that thing where you are very sure about the questions, where you know what you are sure about the answer. Then only you have to attempt it. Otherwise, there is negative marking. You lose your 1 mark. Okay, and each domain is very important because every domain consists of 200 marks, so it is very important. Talking about the syllabus expertise, there is a lot of questions, a lot of doubt inside the students that नया syllabus आ रहा है क्या, जो बोर्ड के हिसाब से दिया हुआ है, या जो नई बुक्स हैं या जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो आ रहे हैं कि नहीं. So one thing I want to make very clear that all the chapters that were there in the board examination prior to 2020 or till 2020 or 21, all the chapters are coming. That means total of 18 chapters are coming in the CUET political science domain. All the chapters are coming, even the deleted ones. जो पुराना सिलेबस था उसमें से सारे चैप्टर जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस CUET के डोमेन में आ रहे हैं. आप जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे सारे जिस तरीके के चैप्टर्स हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, मींस every each and every chapter, even the deleted ones, are the part of political science domain syllabus. Okay, now talking about a preparation strategy, one thing I want to make very much clear, or I want to make a very explicit, that there is no definite preparation strategies you need. मतलब कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की ज़रूरत आपको नहीं है. कोई बहुत ऐसा टिपिकल सा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, स्केड्यूल, ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्टिक टू द सिंपल बेसिक पॉइंट्स. जस्ट कुछ रेफरेंस पॉइंट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है. एंड आई थिंक पॉलिटिकल साइंस डोमेन इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट डोमेन्स एज वेल एज वन ऑफ द टफेस्ट वन ऑल्सो. बट या, इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इफ़ यू स्टिक टू द बेसिक थिंग्स, बेसिक प्रिंसिपल्स वाइल प्रिपरेशन, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस डोमेन बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी होने वाला है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि हमें आखिर कौन सी बुक्स को रेफ़र करना है. क्या NCERT बुक सफिशिएंट है, या उसके अलावा हमें किसी और बुक को भी पढ़ना है? क्या सारा मैटर NCERT बुक से कंप्लीट हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे? क्या उतना सिलेबस कवर कर रहा है NCERT या नहीं? सो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ बुक इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. कोई ज़रूरत नहीं है एक लंबे लिस्ट ऑफ बुक्स बनाने की. It's just NCERT book. Just keep this in mind. You have to focus only and only on the NCERT books. Nothing else you need to refer. Just read NCERT books very thoroughly. Just go through each and every point very thoroughly. Each line in between the lines, all the things that are given in the NCERT books, just go thoroughly. Because nothing is asked in the examination outside the NCERT. Even during the paper discussion or that paper we discussed in the last video, हमने एक ही चीज़ देखी उस पूरे वीडियो में पेपर डिस्कशन के टाइम पे कि all the questions were from the NCERT. Nothing was asked outside the NCERT book. हर क्वेश्चन, हर एक चीज़, even a simple term, terminology, match the columns, passages, everything was coming directly from the NCERT. So just keep one thing in mind कि you have to focus only and only on the NCERT. No other book you have to take it. Just focus on the 2 NCERT books that are given to you. One is for world politics, one is for the Indian politics. Not extensive reading, but intensive reading is required. Again, because it is a subjective, objective type test, and here you get MCQs. So any fact can be taken as a question. Any fact from any point of the book. वो भले ही कोई एक छोटा सा बॉक्स क्यों ना हो, वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कहीं कॉर्नर पे ही क्यों ना दी हुई हो, एक सोर्स बॉक्स में ही क्यों ना हो, या कोई डिस्कशन के टाइम पे एक छोटा सा पॉइंट ही क्यों ना दिया हो, एनीथिंग कैन बी टेकन एज अ क्वेश्चन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड बुक वेरी इंटेंसिवली.
And concept clearance is very important, very much important, because many a times what happens कि आपने चीज़ें पढ़ी तो हुई हैं but concept is not clear, and concept based questions are there जहाँ पे वो concept के बारे में बात कर रहे हैं या concept के आगे पीछे से बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं terms and terminologies की. So if concepts are not clear, it will become quite difficult to attempt the questions. बिकॉज एक बार अगर आपके माइंड में सारे कंसेप्चुअल क्लियरेंस हो जाते हैं या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इट्स ईजियर टू रिकॉल द फैक्ट्स देन, बिकॉज आप किसी एक पर्टिकुलर स्टोरी से रिलेट करके किसी भी फैक्ट को रिलेट कर सकते हैं, टाइम एंड टर्मिनोलॉजी या क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं. सो कंसेप्चुअल क्लियरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो वाइल रीडिंग द बुक, try to clear all the concepts on the spot. Do not make it a further plan कि नहीं I'll look it into it, what can be done further, और इसके आगे पीछे क्या था हम बाद में पढ़ लेंगे. नहीं, on the spot, just while you are reading, if anything is there which you are not understanding, at that point of time you can refer to the Google or any other book, but clear the concept there and then, and that's it. उसके अलावा आपको किसी दूसरे Google Chrome या बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. Things you need to remember while reading. रीड इन बिटवीन द लाइन्स. अगेन जो हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल लाइन टू लाइन हर एक चीज़ पढ़िए. डोंट मिस आउट इवन अ सिंगल थिंग दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि पेपर इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, एंड अगर एनसीईआरटी से पेपर आ रहा है तो ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी से हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन बिटवीन द लाइन्स जाके पढ़ें हर एक चीज़ को. हाईलाइट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट आर गिवन इन द एनसीईआरटी. हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप हाईलाइट करते जाइए जो आपको लग रहा है अपनी एनसीईआरटी बुक में. ऑल द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट आर गिवन इन द बॉक्सेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सनैलिटी, शॉर्ट क्रिस्प स्टोरीज, और उसके अलावा कई सारे इवेंट्स के बारे में, छोटे छोटे इवेंट्स के बारे में डिस्कशन है, कुछ एक अलग अलग मूवीज़ के बारे में भी गिवन है. सो जस्ट रीड एवरी थिंग दैट इज़ गिवन इन द बॉक्सेज. हर एक चीज़ जो भी अलग छोटे से बॉक्स में या साइड में एट द एंड ऑफ द चैप्टर, इन बिटवीन द चैप्टर्स, whatever is given in the boxes, just go through it, because those boxes are very much important. While reading, try to clear all the concepts and terminologies as we have discussed, कि सारे concepts and terminologies clear करते चलिए. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, रेफर टू द गूगल क्रोम और एनी अदर बुक, एंड वहीं पे उस कॉन्सेप्ट को अपनी एनसीईआरटी बुक में ही लिख लीजिए आप, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप रीडिंग करने जाएं तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड आपके सामने हो, आपको दोबारा से किसी बुक या नेट पे सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े. सो jot down everything, jot down all the extra information that you feel that are given, that are not given in the book, but it is important. Jot down everything there in the book itself, because I personally feel और I personally suggest that हर एक चीज़ आप अपनी बुक में ही रखिए. 10 कॉपीज़ बनाने का कोई मतलब नहीं है. कॉपीज़ बनाते हैं, हम नोट्स लिखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम उसे लास्ट टाइम पे पढ़ना भूल जाते हैं. सो जस्ट मेंटेन 2 बुक्स, और उसी बुक को अपना नोट कॉपी भी बना लीजिए. अपने बुक्स में ही शॉर्ट नोट्स करके चिपकाते जाइए, बिकॉज आपके पास एक कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल रेडी हो जाएगा. आपको पता है कि जब आपको सिर्फ 2 ही बुक्स को रेफर करना है तो एनरिच दोज 2 बुक्स विद द फैक्ट्स, नथिंग एल्स. उसी बुक्स में आप शॉर्ट नोट्स, स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हैं. छोटे पेजेस पे नोट्स बना के लिख सकते हैं बुक के साइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स विच यू थिंक इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक और इज़ रिक्वायर्ड टू क्लियर योर कंसेप्ट्स, और डेफिनेशन ऑफ एनी टर्मिनोलॉजीज देयर जो आपको नहीं आती है. जस्ट राइट इट डाउन इन द बुक itself, so that everything should be clear when you are doing 2 or 3 or 4th or 2nd, 3rd or 4th reading. So it should be there only, so that again and again आप उस चीज़ पे फोकस कर सकें. All the chapters are given in a chronological sequence. The series of events are in a chronology. Like हम mainly बात करते हैं दोनों बुक्स का जो सेटअप है, chronology का सेटअप, it's mainly from 1947 to somewhere around 2000. अगर हम रफली बात करें, या 2014 तक भी बात आ जाती है. So everything, the sequence of the chapter is in a chronology. Try to understand that chronology. Enumerate the chronology from each chapter. Some note making tips are also there. You need not to write everything given in the book as notes. Just maintain a single copy. Focus on multiple reading. It will really help a lot. After reading each chapter, make list of all the events chronologically. मतलब अगर आपने किसी चैप्टर को पढ़ा तो जितने भी इवेंट्स हैं chronologically उनकी लिस्ट बना लीजिए. कि सपोज हम कोल्ड वॉर एरा पढ़ रहे हैं तो 1961 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है. उसके पहले अगर हम बात करने चाहें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट या कॉन्सेप्ट की, तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है. कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कब खत्म होकर यूनाइटेड नेशंस बनना शुरू होता है.
उसके अलावा आगे चल के कौन कौन सी इवेंट्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जो छोटे छोटे वॉर्स हैं, उन सारी चीज़ों का एक क्रोनोलॉजिकल लिस्ट बनाते चलिए आप अपनी नोट्स कॉपी में। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट टाइम लाइन्स, जितनी भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ एंड कॉन्फ्रेंसेस उसी क्रोनोलॉजिकल इवेंट में उसे भी लिखते चलिए, सो दैट देयर इज़ one chronology there in your mind. So in case any question comes up related to chronology or any question comes up, because there are some questions जहाँ पे उन्होंने बात की है कि आप इनको sequential order में जमाइए या chronological order में जमाइए, या फिर match the columns में आ गया है कि treaties दे दी गई हैं और उनकी dates दे दी गई हैं. All of a sudden it's not easier to recall everything and it's not easier to learn everything or inculcate everything. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर क्रोनोलॉजिकली आप चैप्टर को पढ़ते चलेंगे एंड आप समझते चलेंगे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर का सेटअप किस टाइम पीरियड का है, इट विल बी ईजियर, बिकॉज देन यू कैन रिलेट कि अच्छा अगर हम कोल्ड वॉर एरा की बात कर रहे हैं तो हम 1945 से 1991 की बात कर रहे हैं, तो 1945 से 1991 की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजीज हैं कोल्ड वॉर एरा से रिलेटेड, आप उसे एक जगह पर लिख लीजिए, सो दैट उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आपको पता है कि हाँ कोल्ड वॉर एरा की हम बात कर रहे हैं, कोल्ड वॉर एरा से रिलेटेड एक फेनोमेना की बात कर रहे हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, देन अगेन यू नो कि 1945 से 1991 के ही बीच में आएगा, एंड देन अगेन एक छोटा सा रिकॉल कि ओके क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1961, easier, much easier to recall, to remember, and during the exam this strategy helps a lot, so please do that. Once you are done with all the chapters, make a separate list of all the events with the same time frames. Now if there is time left with you, तो एक टाइम like जितने भी like suppose हम बात करते हैं 1947 की, तो आपने जब सारे चैप्टर पढ़ लिया है तो 1947 से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उन्हें एक साथ लिख लीजिए। देन 1948 की बात करें, उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उनको सबको एक साथ लिख लीजिए। सेम वे 1961 या 1961 की बात करते हैं या 1965 की बात करते हैं, सारे इवेंट्स एक साथ लिखते चलिए दोनों बुक्स में से जो भी चीज़ें गिवन है, राइट, ऑल द थिंग्स गिवन फ्रॉम दोज बुक्स इन द सेम टाइम फ्रेम। एक टाइम ब्रैकेट बना लीजिए कि हमने 1947 का ईयर ले लिया है, अब उस 1947 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको सबको 1947 के अंडर में लिख लीजिए, सो इट विल बिकम मोर ईजियर टू रिकॉल द थिंग्स, फैक्ट्स एंड द इवेंट्स गोइंग ऑन। लाइक अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ कि चीज़ों को रिलेट किस तरीके से करते हैं हम, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की हम बात करते हैं वो है 1961 में, एंड हम बात करते हैं चाइना इंडिया वॉर की, वो हुआ है 1962 में। सो जब 1962 में चाइना इंडिया वॉर हो रहा है, उसके जस्ट एक ईयर पहले हम देखते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। जब 1965 की बात करते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर चल रहा है, तो उस टाइम पे वर्ल्ड सिनेरियो कैसा चल रहा है। 1971 के टाइम पे अगर हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं, उस टाइम पे वर्ल्ड सिनेरियो क्या चल रहा है, या 1989 में जब बर्लिन वॉल फॉल हो रही है तो उस टाइम पे इंडिया में सिचुएशन क्या चल रहा है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी करने में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल नोट्स बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। ऐसा भी कहा गया है कि जितना आप फील्ड पे पसीना बहाएंगे उतना ही आप वॉर में कम खून बहाएंगे, ऐसा पुराने स्पार्टन्स और एथेंस के टाइम पे लोग कहा करते थे। बट इसका मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे उतना ही ईजियर होगा आपके लिए एग्जाम के टाइम पीरियड में एग्जाम देना। सो डू एज मच रिविजन एज पॉसिबल, कि अगर आपने पढ़ लिया है तो उसके बाद मल्टीपल रीडिंग्स करिए, कंटिन्यूस रिविजन करते जाइए। हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कोशिश करिए कि उस चैप्टर में से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व बनाएं। जस्ट ट्राई फ्रेमिंग योर ओन क्वेश्चंस सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास खुद का एक क्वेश्चन बैंक होगा अराउंड 200-250 क्वेश्चंस का। इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। उसके अलावा रिवीजन करते रहिए ताकि एटलीस्ट ये क्रॉस चेक होता है कि कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है, या कहीं कोई ऐसा पार्ट जो सिलेबस का इंपॉर्टेंट है बट वो रह गया हो। अगेन प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूसली ट्राई गिविंग MCQs। हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं आप उनको देने की कोशिश करिए, इंटरनेट से मिल रहे हैं या किसी बुक से मिल रहे हैं। ट्राई गिविंग दोज MCQs। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फुल लेंथ टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट आप देंगे यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर गिविंग एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम डे, एंड ऑल्सो इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया होगा, एंड दे हैव टू गेट यूज टू इट बिफोर अल्टीमेटली गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑन द वेरी एग्जाम डे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रिपेयर्ड हो कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को मार्क करते हैं, आंसर सबमिट कैसे करते हैं। बिकॉज मैनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि क्वेश्चन आपने सही मार्क कर दिया है बट सबमिट बटन पे क्लिक नहीं किया है, सो दैट आंसर विल नॉट बी रिकॉर्डेड। सो आप किस तरीके से करते हैं, या जो क्वेश्चन आपने नहीं किया है उनके साथ क्या करना है, आपको दोबारा अगर किसी क्वेश्चन पे स्किप करना है तो, बिकॉज अगर हमारे पास एक इन हैंड पेपर होता है तो हम कई बार पलट के देख लेते हैं, बट
क्वेश्चन जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है तो आपको ऐसे पलटने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग कि अगर मुझे इस क्वेश्चन पे जंप करना है तो मैं कैसे जाऊँगा, या मैंने कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं। एक बार कोई गो थ्रू भी हम करते हैं कई बार पेपर देने के बाद कि सही ऑप्शंस लगाए हैं कि नहीं, तो वो किस तरीके से करना है। सो प्लीज़ ट्राई गिविंग फुल लेंथ टेस्ट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम डे। जितने ज़्यादा टेस्ट आप देंगे उतने ही ज़्यादा आप प्रिपेयर्ड होंगे एग्जाम डे के लिए। सो ट्राई गिविंग एट मैक्सिमम मॉक टेस्ट दैट यू कैन। दैट्स इट, दैट इज़ अ वेरी सिंपल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू स्टिक टू। Just talking about our paid courses, we are having daily live classes by top faculties of India, including IIT and IIM selected DU alumni faculty. We are having recorded lectures that can be viewed anytime for any number of times. We are having PDF with 4500 plus MCQ questions plus live doubt clearing sessions. We are also having 20 online mock tests for each subject, and you have one-stop solution for everything. All this thing is there in our app that is there on the Play Store. So in any case you want to join us with the paid courses, please do us. For other doubts and queries, feel free to comment in the comment section. आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, feel free to comment in the comment section. That's all in this video. Thank you, take care, bye bye.